पूछो जाके उनसे जिन पे रोशनी नहीं, पूछो जाके उनसे कैसी लगती है कमी। Shahid Azam, moderator of today's session. Welcome in OptoHub, a platform set up with an incentive of taking optometry a step forward and provide aspiring optometrists an opportunity of enhancing their knowledge and proficiency. So for today, our topic is glaucoma and speaker is Yusra Swair. She is a final year student of Bachelor of Optometry, Jamia Amdar, currently working on comparison of IOP in diabetic and non-diabetic. Once again, welcome participants. Thank you very much for being connected to OptoHub. Over to you, Yusra ma'am. Please continue. Okay. So we have glaucoma topic today, and as we know that glaucoma is the major cause of blindness. Glaucoma blindness is one of the major causes of blindness. So it is hard to control glaucoma because there is no early detection, and when patients see scotomas or visual field defects already started, then they come. So it is very important to diagnose such patients which are above 35 years, or they are the patient of diabetes mellitus, or they have history of glaucoma, family history of glaucoma. So that's why it is known as the silent thief of sight. क्योंकि ये जब स्टार्ट हो जाता है तभी पता चलता है। अभी कैटरैक्ट की तरह भी नहीं है कि आप इसे क्योरेबल ब्लाइंडनेस है कि आप बस इसे ऑपरेट कर दें और ये हो जाएगा। तो इसकी जो विजुअल फील्ड इफेक्ट्स होती है उन्हें कंट्रोल करना काफी इम्पोर्टेंट होता है। So first thing that we have to know before glaucoma is intraocular pressure. As we know, intraocular pressure is the pressure by intraocular fluids on the course of the eyeball. So as we know that we have two intraocular fluids. Okay, the first is vitreous and the second is aqueous humor. So this vitreous is stagnant gel, and this one can flow in eye. So the normal pressure जो होता है हमारा IOP, that is between 10 and 20 millimeters of mercury. But if it is more than that, then it creates problem. तो देख सकते हैं आप raised intraocular pressure ग्लोकोमेटस पेशेंट्स के अंदर कितना होता है 21 mg ज्यादा, तो ये इस तरीके का है। और विजुअल फील्ड चेंजेस इस तरीके से दिखते हैं उन्हें। तो किसी कोई भी पेशेंट हो जिसके रैपिड चेंजेस हो रहे हो ग्लासेस के, तो हमें उन्हें देखना पड़ता है। डार्क अडेप्टेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें भी हमें अच्छे से देखना होता है। So glaucoma definition is glaucoma is multifactorial optic neuropathy. As we know, optic disc, so it starts damaging. Okay, so that's why it is called optic neuropathy associated with risk factors like increased IOP. हम कभी भी जब भी ग्लोकोमा की डेफिनेशन बोलेंगे तो उसमें रिस्क फैक्टर लिखेंगे आईओपी को, क्योंकि आईओपी बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होता है। कुछ लोगों ने एक्सरसाइज करी तो उनका क्या कहते हैं लो भी हो सकता है, किसी ने अल्कोहल कंजम्पशन उनका लो हो सकता है, जिन्होंने वाटर पी लिया उनका इंक्रीज हो सकता है। तो जो आईओपी के बेस पे भी कह सकते हैं कि ग्लूकोमा है उन्हें। तो दो चीजों से कैरेक्टराइज होता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिक डिस्क चेंज और दूसरा होता है इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव विजुअल फील्ड चेंजेस। जैसे मैंने बताया कि विजुअल फील्ड चेंजेस इरिवर्सिबल हैं, जितनी हो गई है हमें उसी को रोकना होगा। नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडल्ट ऑनसेट होते हैं, जबकि कंजेनाइटल जो होता है बच्चों में होता है। As we know, that is open angle and closure angle। मैं आपको समझा देती हूँ। In open angle, as you know, the aqueous flow, trabecular flow and uvuscleral flow. aqueous flow, trabecular meshwork का जो flow है वो किस तरह होता है, सीलियरी बॉडी में बनेगा, फिर हमारा पोस्टीरियर चैम्बर से कहाँ आता है, आ गया एंटीरियर चैम्बर में। और एंटीरियर चैम्बर यहाँ पे हमारा जो आइरिडोकॉर्नियल एंगल है, इसके थ्रू यहाँ ट्रेबिकुलर मैशवर्क है, फिर ट्रेबिकुलर मैशवर्क है, वहां से श्लेम्स कैनाल्स में जाके फिर वीनस से स्क्लेरल के थ्रू बाहर हो जाता है वो वीनस सिस्टम से। और दूसरा टाइप का जो एक्वस ड्रेनेज होता है वो किस तरीके से होता है, यूवियस स्क्लेरल आउटफ्लो। इसमें क्या होता है, जो सीलियरी बॉडी में एक्वस बन रहा है वो थोड़ा सा वहीं से एब्जॉर्ब हो जाता है वापस इसमें, और फिर वहां के थ्रू वो सुप्राकोराइडल वेन्स में जाता है और फिर वहां से वीनस सिस्टम में जाता है। तो ये दो टाइप के हमारे फ्लो होते हैं एक्वस के। अब इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो हम एंगल, ओपन एंगल की बात कर रहे हैं। ओपन एंगल में क्या प्रॉब्लम आएगी, ओपन एंगल में क्या होता है, आपका जो आइराइडोकॉर्नियल एंगल है ना ये ओपन ही होता है, लेकिन जो आपका ट्रेबिकुलर मैशवर्क है, ये ट्रेबिकुलर साइड्स जो हैं, इसका फ्लोरोसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसमें कुछ चीजें जो है वो आके जम जाएंगी, फैगोसाइट्स या फिर जिससे क्लीन करते हैं या फिर कोई और मटेरियल इन्फ्लेमेटरी, तो वो क्या करता है, ये तो सही होगा लेकिन
एक्वस फ्लो में रेजिस्टेंस आ रहा होगा तो हम उसे बोलते हैं ओपन एंगल। और जो अराइडोकॉर्नियल एंगल होता है एंगल क्लोजर, उसमें ये बंद हो जाता है। अराइडोकॉर्नियल एंगल, ओपन एंगल में खुला रहेगा, बस फ्लो में रेजिस्टेंस आएगा क्योंकि हो सकता है कोई वेन्स जो हो वो नैरो हो गई हो, वीनस वेन्स। देन वी हैव सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी को भी हमने ओपन एंगल और एंगल क्लोजर में डिवाइड करा है। जो ओपन एंगल है, जैसे मान लीजिए, देखिए अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी के अंदर इन एंगल जो आपको फ्लो में हेल्प करते हैं, बाहर जैसे ड्रेनेज होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्राइमरी एंगल ओपन एंगल कहलाता है। लेकिन क्लोजर के अंदर वो ऐसे, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तब वो कहलाएगा। लेकिन सेकेंडरी में आई के किसी और पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से ग्लोकोमा हो रहा है, तो सेकेंडरी कहलाएगा। जैसे कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम है, लेंस में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए लेंस के फाइबर्स की ओपेसिफिकेशन हुई, तो ओपेसिफिकेशन वैसे सॉलन हो जाएगा, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो आइरिस भी आगे जाएगा, और आइरिस जब आगे जाएगा तो अराइडोकॉर्नियल एंगल बंद हो जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्लोकोमा। या फिर कॉर्नियल अल्सर हो गया, तो कॉर्नियल अल्सर के अंदर क्या हुआ, जो भी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हुए वो अराइडोकॉर्नियल पे है और यहाँ आके इसे बंद कर दिया, तो ये सेकेंडरी कहलाएगा। किसी और तो सिस्टमिक डिसऑर्डर की वजह से ग्लोकोमा हो तो सेकेंडरी कहलाता है। और अगर एक्वस फ्लो के ड्रेनेज पाथवे में ट्रेबिकुलर या फिर क्या कहते हैं एंगल क्लोजर की वजह से हुआ तो प्राइमरी कहलाएगा। कंजेनाइटल होता है 3 टाइप्स दैट वी नो, ट्रू कंजेनाइटल, इन्फेंटाइल एंड जुवेनाइल। ट्रू कंजेनाइटल एट बर्थ होता है, कोई हेरिडिटी इफेक्ट हो जब बिल्कुल उसी टाइम पे। इन्फेंटाइल बर्थ से 3 इयर्स में बच्चे को हो सकता है, और जुवेनाइल में हम जानते हैं 3 इयर्स टू 16 इयर्स। तो हमें ग्लूकोमा के बाद ऑक्यूलर हाइपरटेंशन और लो टेंशन ग्लूकोमा पता होना चाहिए। इन दोनों में ये डिफेक्ट ग्लूकोमा की डेफिनेशन में है कि इंक्रीज आईओपी होना चाहिए, फील्ड डिफेक्ट और कपिंग ऑफ डिस्क की चीजें होनी चाहिए। तो ऑक्यूलर हाइपरटेंशन में इंक्रीज आईओपी तो आपको मिलेगा, लेकिन फील्ड डिफेक्ट या कपिंग ऑफ डिस्क नहीं मिलेगा। तो ये वो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें बाद में ग्लूकोमा हो जाता है, क्योंकि आईओपी बढ़ा हुआ है तो बाद में ऑप्टिक डिस्क चेंजेस आएंगी। लेकिन लो टेंशन में आपका आईओपी जो होता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फील्ड डिफेक्ट और कपिंग ऑफ डिस्क ऑलरेडी हुई होती है, और काफी ज्यादा जो ग्लूकोमा में होती है उससे ज्यादा डेंजर होती हैं, ज्यादा डीप होती हैं। पैथोफिजियोलॉजी में 2 थ्योरी हैं हमारे पास, पहली है मैकेनिकल थ्योरी और दूसरी है केमिक थ्योरी। अब मैंने बताया जैसे कि एंगल ब्लॉक होगा या फिर कहते हैं ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, तो अंदर आई के प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमारी आई के अंदर सिर्फ एक ही जगह ओपनिंग है, और वो ओपनिंग कहाँ है, ऑप्टिक नर्व पे, तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इस वजह से वो डैमेज होनी शुरू होती है। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो ये मैकेनिकल थ्योरी तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपके ग्लायल सेल्स हैं, रेटिनल गैंग्लियन सेल्स हैं, सेंट्रल रेटिनल वेल आर्टरी सब कुछ है। तो जब इस पॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ से सारी चीजें जो आपके कहते हैं पीछे जो ग्लायल सेल्स है, न्यूट्रिशन जो आता है वो कहाँ से आता है, हमारा एक्सोप्लाज्मिक फ्लो के थ्रू आता है, ठीक है। तो जब इस जगह पे इफेक्ट पड़ेगा तो लेमिना क्रिब्रोसा जो है ये वीकेस्ट पॉइंट है, और इस चीज को जब वो इफेक्ट करेगा कि वीकेस्ट पॉइंट है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक्वस फ्लो एक्सोप्लाज्मिक फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, और एक्सोप्लाज्मिक फ्लो के थ्रू हमें क्या मिलता है, सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं ना आरजीसी को, रेटिनल गैंग्लियन सेल्स को, वो मिलते हैं। जब वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो रेटिनल गैंग्लियन सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और जब डेथ हो जाएगी क्योंकि विजन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, और फिर जब आप फंडोस्कोपी करेंगे तो आपको ऑप्टिक डिस्क चेंजेस मिलेंगे और फील्ड इफेक्ट्स दिखेंगे। इस्कीमिक थ्योरी, कीमिया जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब भी कभी ब्लड सप्लाई किसी पार्ट में कम होती है तो कीमिया उसे कहते हैं। अब मान लीजिए किसी ने एक सिंपैथेटिक एक्टिविटी करी और उससे ब्लड फ्लो जो होता है किसी बॉडी पार्ट में बढ़ जाता है, किसी बॉडी पार्ट में कम हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, ऑटो रेगुलेशन। तो वो प्रोसेस है वो उसको मेंटेन करके रखता है। अगर ये प्रोसेस खराब हो जाए ऑटो रेगुलेशन का तो क्या होगा, स्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक और बात, जैसे माइग्रेन के पेशेंट्स हैं तो उनकी जो वेसल्स होती हैं ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जैसे वेसल हो गया तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो ब्लड सप्लाई जो होगी वो कम जाएगी जब वो पतली हो जाएंगी, तो इस वजह से भी इस्कीमिया हो जाता है। या फिर पूरी बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है पेशेंट का, तो आंखों में भी जाहिर सी बात है असर पड़ेगा,
और फिर लो परफ्यूजन की वजह से इस्कीमिया हो जाएगा, और फिर इस्कीमिया की वजह से क्योंकि अब ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो नर्व फाइबर्स जो होंगे वो लॉस करने लगेंगे अपना फंक्शन, और ऑप्टिक डिस्क हेड फाइबर्स होंगे एक्सोप्लाज्मिक फ्लो डिस्टर्ब करेगा, फिर न्यूरोट्रोफिन्स नहीं पहुंच पाएंगे उन्हें, और यहाँ पे फिर आरजी सेल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो एक इस्कीमिया की वजह से हो जाता है हमें क्या, ऑप्टिक डिस्क चेंजेस आती हैं, और एक मैकेनिकल थ्योरी की वजह से, दोनों में ही अपटोसिस हो जाता है आरजीसीज का। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। जो हमारे एक्सोप्लाज्म, जो हमारे रेटिनल गैंग्लियन सेल्स है, उनकी सेल बॉडी में हमें न्यूरोट्रोफिन चाहिए होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। जब उस ग्रोथ के अंदर हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है जो एक्सॉन्स के थ्रू आता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है और एक ऑप्टिक डिस्क में हमारी वेन होती है, तो उस तरीके से नर्व के थ्रू हमें क्या आता है, वहां से न्यूरोट्रोफिन आते हैं एक्सोप्लाज्म के थ्रू। लेकिन लेविना फिब्रोसा सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर बढ़ता है जब आईओपी बढ़ता है, तो इस वजह से वहाँ पे एक्सोप्लाज्मिक फ्लो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से न्यूरोट्रोफिन नहीं आ पाते, न्यूट्रिशन नहीं आ पाता है आरजीसीज को, और आरजीसीज की डेथ होती है, जिसकी वजह से विजन प्रॉब्लम्स आती हैं और ऑप्टिक डिस्क चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। और दूसरा, जब बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, या फिर क्या कहते हैं स्कीमिया, जिसे हम स्कीमिया बोलते हैं, वो कम होगा। तो हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे ग्लूकोमा का? तो देयर आर मेथड्स: टोनोमेट्री, गोनियोस्कोपी, फंडोस्कोपी, पेरीमेट्री, प्रोवोकेटिव टेस्ट एंड इमेजिंग टेक्निक। सबसे पहले हम पेशेंट का जाहिर सी बात है टोनोमेट्री करेंगे, प्रेशर मेजर करेंगे। और प्रेशर मेजर तरीके के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं टोनोमेट्री के, शियोर्ट्स है, पास्कल है, नियर एप्लीनेशन। लेकिन जो इसमें याद रखना है वो है डायरेक्शनल वेरिएशन टेस्ट। अगर पेशेंट को आपने मान लीजिए 7 AM से आप उसका थोड़ा सा 1 बजे तक कहते हैं आपका आईओपी मेजर कर रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है 5 mmHg, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर 8 mmHg आ रहा है, तो यानी वो सस्पेक्ट है कि उसे ग्लोकोमा है। ठीक है, तो कुछ लोगों का मॉर्निंग में आईओपी राइज होता है, कुछ का आफ्टरनून में, और कुछ का दोनों टाइम राइज हो सकता है। नेक्स्ट इज गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी हम किस तरीके से करेंगे? हम इसके अंदर एंगल के सारे जो एंगल स्ट्रक्चर्स है ना, सारे आइडोकॉर्नियल एंगल के पास जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? ये सारे स्ट्रक्चर, सीलियरी बैंड है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क है, श्लेम्स कैनाल, स्क्लेरल स्पर्श, श्वेल बेस लाइन, हम ये सारे स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये जो एंगल को मिलकर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि ये दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, तो हमें इसके लिए गोनियो लेंस लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारी आई के अंदर जो होता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से जब क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा TIR हो रहा होता है, तो हम उसके लिए गोनियो लेंस लगाना पड़ता है, और एक लोकल एनेस्थीसिया देते हैं हम ऑक्यूलर ल्यूब्रिकेंट लगा के। तो हम वो लगाएंगे, और फिर ये जो होगी लाइट जो होगी वो गोनियो मिरर पे जाएगी, और फिर हम उसे यहाँ से विजुलाइज कर पाएंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रेड दे रखे हैं। ग्रेड 0 पे आपको कोई मतलब कहते हैं एंगल बिल्कुल क्लोज है तो पता चल जाएगा कि हाँ ग्लोकोमा है। अगर ग्रेड 2 पे आपको पता चलता है कि शॉल बेस लाइन दिख रही है, और ग्रेड 2 पे ऐसे ही ये स्ट्रक्चर सारे दिख रहे हैं, कोड पे सारे दिखते हैं, तो यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम एक और टेस्ट करते हैं, फिर होता है फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी में आप सारे रेटिना के वेसल्स देख सकते हैं, ऑप्टिक नर्व को देखेंगे पूरा। तो ये नॉर्मल है और ये ग्लूकोमेटस है। तो हम ग्लूकोमेटस में देखे हैं, ग्लूकोमेटस में हमको बिल्कुल राउंड ऑप्टिक कप दिख रहा है। कप होता है और बाहर क्या होता है, हमारा डिस्क होती है। कप और डिस्क जो है उसका रेशियो होता है, रेशियो जो होता है डायमीटर्स का रेशियो, एक का 0.3 और 0.10, तो इसका हमें जो रेशियो मिलता है वो मिलता है 0.7। लेकिन अगर किसी की ग्लूकोमेटस होगी तो उनकी 0.9 होगा डायमीटर, जो कप का रेशियो आएगा। ठीक है, और जो नॉर्मल होते हैं उनके अंदर जो वेसल्स होती हैं वो किधर होती है, सेंटर में होती हैं। लेकिन किसी ग्लूकोमेटस होगी, उनकी जो होंगी एक तरफ चल जाएंगी, नेजलाइजेशन हो जाएगा वेसल्स का। ठीक है, और रिम रिम जो आपको ये दिख रही है पिंक कलर की होती है नॉर्मल में, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो ये पेल होनी शुरू आती है ग्लूकोमा जो पेशेंट्स होते हैं।
और इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो सेंटर में बता दिया। और हम इसमें जो होता है ग्लूकोमेटास में हमें हेमरेजेस भी दिखते हैं क्योंकि कैपिलरीज की एट्रोफी शुरू हो जाती है। और एक और चीज जो हमें दिखता है लेमिना फिब्रोसा में स्लिट शेप दिख रहे हैं। इस तरीके के स्लिट शेप हमें लेमिना फिब्रोसा में मिलेंगे एडवांस ग्लूकोमेटास कप के अंदर, तो यानी काफी डैमेज हो चुका है। So there is a difference between healthy optic cup and glucomatous optic cup. नॉर्मल में न्यूरोरेटिनल रिम बिल्कुल येलो या पिंक कलर की थी, लेकिन न्यूरल रिम ग्लूकोमेटास में पेल कलर की हो गई है। यहाँ पे डायमीटर सिर्फ 0.7 था, यहाँ पे इंक्रीज होकर 0.5 हो गया है। इसमें ब्लड वेसल्स जो थी सेंटर में थी, इसमें नेजल शिफ्टिंग भी हो रही है और हेमरेजेस भी हो रहे हैं। और एक और चीज, इसमें बिल्कुल क्या कहते हैं, सर्कल थी, यहाँ राउंड सी थी, लेकिन इसमें कैसी हो जाती है, ओवल हो जाती है, बिल्कुल ओवल सी हो गई, यहाँ पे बिल्कुल सर्कल थी। नेक्स्ट वी हैव विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन। जब तक पेशेंट को कोई विजुअल फील्ड डिफेक्ट नहीं आएगा तब तक नहीं पता चलता है कि ग्लूकोमा है या नहीं है। तो हम दो तरीके से करते हैं, काइनेटिक और एक स्टैटिक। काइनेटिक के अंदर हमें एक दो टाइप्स की होती है वैसे तो, गोल्डमैन एंड टेंजेंट, वो भी कर सकते हैं। बाकी अब जो यूज करते हैं मोस्टली लोग वो होती है स्टैटिक पेरीमेट्री, जैसे फिगर में दिखा रखा है ना, मोस्टली वही यूज होती है। विजुअल फील्ड डिफेक्ट को करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम इससे समझ लें डायग्राम को। हमारा ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो होता है हमारा ऑप्टिक नर्व, जहाँ से आ रही होती है हमारी, तो वहाँ पे तो कोई इमेज बन नहीं रही होती है, तो ये हो गया। एक होता है वर्टिकल मेरिडियन, इसे बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल ये, और फिक्सेशन पॉइंट हमारा बिल्कुल बीच में, और फिक्सेशन पॉइंट से 10 to 25 डिग्री पे हमारा होता है जेरम्स एरिया। तो पेरिफेरल फील्ड डिफेक्ट इज मॉडरेट एंड देन वी हैव एडवांस। तो स्कोटोमा सब बता देती हूँ। स्कोटोमा होता है जब हमें किसी एरिया में लाइट बिल्कुल भी नहीं दिख रही होती है, उस एरिया में बिल्कुल विजन नहीं दिख रहा होता है। और एब्सोल्यूट तब होता है जब बिल्कुल भी लाइट नहीं दिख रही होगी, और रिलेटिव हम तब स्कोटोमा कहते हैं जब ब्लर है लेकिन अभी भी वहां लाइट मतलब पहुंच रही है, लेकिन वो रिलेटिव स्कोटोमा कहलाएगा क्योंकि ब्लर होता है वो एरिया। लेकिन अगर बिल्कुल लाइट परसेप्शन नहीं है तो एब्सोल्यूट कहलाया जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा बेयरिंग ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट। सबसे पहले हम पैरासेंट्रल स्कोटोमा देखेंगे, बेयरिंग ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट, सॉरी 4 है। फर्स्ट है पैरासेंट्रल। पैरासेंट्रल जो होता है 30 डिग्री के अंदर अंदर होता है, ठीक है, 30 डिग्री के अंदर होगा। ब्लाइंड स्पॉट तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इसमें नहीं है दूसरी फिगर में, लेकिन फर्स्ट फिगर में हर जगह ब्लाइंड स्पॉट तो हो गई। लेकिन जो फील्ड इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, ये पैरासेंट्रल जो है, पैरासेंट्रल सेंट्रल के आसपास ही, ठीक है। तो ये पैरासेंट्रल होता है अंडर 30 डिग्री। फिर नेक्स्ट है हमारा आइसोलेटेड पैरासेंट्रल स्कोटोमा। इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि ये जो होगा ये नेजल साइड पे होगा, सिर्फ इतना फर्क है इसमें। एक होता है सीरियल स्कोटोमा। सीरियल स्कोटोमा में क्या होता है, ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है इससे थोड़ा सा मिल जाता है आकर, देख रहे हैं ना, सीरियल साइड सिकल, वो जो सिकल शेप्स होती हैं ऐसे करके, इस तरीके से ये होता है, तो इसमें सीरियल बोलते हैं। और बेयरिंग ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट पहला हमारा अर्लीस्ट स्टेज होता है ग्लूकोमा में, जिसे हम बोलते हैं कि हाँ पेशेंट को ग्लूकोमेटस फील्ड इफेक्ट स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट जो होता है ना वो फिजियोलॉजिकली बड़ा होने लगता है काफी, और आसपास के ऑप्टिक नर्व फाइबर्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, डिजनरेट होने लगती हैं। नेक्स्ट वी हैव मॉडरेट फील्ड इफेक्ट्स। मॉडरेट फील्ड इफेक्ट्स में सबसे पहला आर्कुएट, जेरम स्कोटोमा, देन वी हैव रिंग स्कोटोमा, डबल आर्कुएट बोलते हैं हम रिंग स्कोटोमा को, और थर्ड है पेरिफेरल फील्ड इफेक्ट। तो जो आर्कुएट है उसमें ये होता है कि हमारा सर्कल पोर्शन है, ये से ना क्रॉस नहीं करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राफी से क्रॉस नहीं करता है, देखिए आर्क सा होता है बिल्कुल, या तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन क्रॉस नहीं करता हॉरिजॉन्टल ग्राफी को। नेक्स्ट है रिंग, जब दो डबल, जो एक और आर्कुएट है ऊपर भी है नीचे भी है, जब दो आर्कुएट मिलेंगे तो बनाएंगे रिंग स्कोटोमा। एंड देन वी हैव पेरिफेरल फील्ड इफेक्ट। पेरिफेरल के अंदर क्या होगा, हमारा पेरिफेरल ब्रेक थ्रू है, जिसके अंदर हमारा जो फील्ड इफेक्ट है वो थोड़ा सा, जो आर्क स्कोटोमा बनेगा ना ये, इससे थोड़ा जाके पेरिफेरी से मिल जाएगा, तो हम इसे बोलते हैं पेरिफेरल ब्रेक थ्रू, आगे डबल आर्कुएट।
देन वी हैव एडवांस फील्ड इफेक्ट, जिसमें ट्यूबुलर फील्ड और टेम्पोरल आइलैंड ऑफ विजन आता है। हो सकता है सेंट्रल रह जाए और बाकी सारा फील्ड विजन चली जाए, और बाकी टेम्पोरल में क्या होता है, सिर्फ थोड़ा सा सेंट्रल भी पूरा जा चुका है, बस टेम्पोरल थोड़ा सा रह जाएगा, टेम्पोरल की साइड। ये सारे हमारे एक तरफ है, जेरम स्कोटोमा, जेरम्स एरिया, पैरासेंट्रल, ब्लाइंड स्पॉट, सीडल स्कोटोमा, ये ब्लाइंड स्पॉट से मिल रहा है। ये नेजल स्टीप है, ये भी इस तरीके से ही होता है जैसे आर्पिड होता है, ये भी हॉरिजॉन्टल राशि को क्रॉस नहीं कर होता, नेजल साइड पे होता है। देन वी हैव प्रोवोकेटिव टेस्ट है हमारे, लेकिन प्रोवोकेटिव टेस्ट जो होते हैं वो करने से पहले हमें प्यूपिल को मिड डायलेटेड स्टेट में लाना होता है, ताकि हम आईओपी जो है मेजर करें पेशेंट से मिड डायलेशन से पहले और मिड डायलेशन के बाद। हमें ब्लॉक करना होता है एंगल को, एराइडोकॉर्नियल एंगल को हम ब्लॉक कर देंगे। और किस तरह ब्लॉक करेंगे, हम किस तरीके से कर सकते हैं, 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। फिजियोलॉजिकल, डार्क रूम में ले जाएं हम इसे, या फिर हम स्पाइन पोजीशन पे लिटा दें, और फार्माकोलॉजिकल में भी प्यूपिल जो होगा मिड डायलेटेड स्टेट में चला जाएगा, एट्रोपिन दे दें या फिर कोई कोलिनर्जिक ड्रग दे दें, और वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट भी कर सकते हैं जिसमें एंगल क्लोजर हो जाता है। जिसमें एंगल क्लोजर हम किस तरीके से करेंगे, हम प्यूपिल को मिड डायलेटेड स्टेट में लाएंगे। जब प्यूपिल मिड डायलेटेड स्टेट में आएगा तो आइरिस जो है इसको टच करने लगेगा लेंस को। लेकिन अब जब हमने इसको बंद कर दिया तो पीछे से पोस्टीरियर चैम्बर से इंटीरियर चैम्बर पे हमारा एक्वस फ्लो नहीं आ पाएगा। जहाँ पे क्या होगा, आईओपी रेज होगा, और जब वो पीछे से आगे नहीं आ पाएगा तो आइरिस अपनी ऐसी शेप ले लेगा, तो इनसे बोलते हैं आइरिस बॉम्बी, इस तरह की शेप जो हो गई है। और इससे क्या होता है, जब ये ऐसा आगे बढ़ता रहेगा तो आइरिस कॉर्निया को टच करने लग जाएगा, और अराइडोकॉर्नियल जो एंगल है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। इस तरीके से हम पेशेंट का आईओपी ले लेंगे, और फिर डार्क रूम में हम उसे 1 घंटे लिटाने के बाद ले लेते हैं। और जो लास्ट थिंग है वो है कि अगर हमें इमेजिंग टेस्ट करनी है तो इमेजिंग टेस्ट बहुत सारे तरीके होते हैं। हम पिक्चर लेते हैं रेटिना के लीजन्स की, ऑप्टिक नर्व की, विट्रस की, ये सब हम करते हैं। पैचीमेट्री से हम कॉर्नियल थिकनेस ले सकते हैं, जो डिवाइसेस हैं। अगर हमें पिक्चर्स चाहिए तो ऑप्टिकल कोहेरेंस टोनोग्राफी है जो ऑप्टिक डिस्क देखती है, रेटिनल लेयर्स और ऑप्टिक नर्व भी देखती है। और हमारे पास होता है अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी, जिससे हम एंगल ऑफ इंटीरियर चेंबर की फोटो ले सकते हैं।